ठीक है, आज हम मिलने वाले जनमीत भाई से मिल रहे हैं, हु इज द फाउंडर ऑफ राइडिंग रूट्स। सो मेनली हमारा आज का एजेंडा है, ठीक है, आज हम मिलने वाले जनमीत भाई से मिल रहे हैं, जनमीत भाई से, ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ राइडिंग रूट्स, जो एडवेंचरस राइड्स पे जाते हैं कॉर्पोरेट्स को लेकर, नए क्लाइंट्स को लेकर अपने को, और इनका ट्रैवल एक्सपीरियंस मतलब मैं उंगलियों में नहीं गिन सकता, इतना होगा, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे स्टोरीज के बारे में, क्या स्टोरीज रही इनकी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में, और ट्रैवल में मतलब इंफॉर्मेटिव ना रख के गपशप रखेंगे, ज्यादा कैजुअल रखेंगे, एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ठीक है। तो जनमीत भाई पहले तो वेलकम, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने यू गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म टू talk about my experiences, and I hope people will be able to relate to some of them, and hopefully people will be inspired to travel, to explore, to begin the journey outwards and inwards. अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन रहता है जिससे मैं नए बंदे से मिलता हूँ, हाँ. तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, कि व्हाट्स योर स्टोरी, राइट, तो उसका आंसर चाहिए। So what's my story? Honestly, it has been a beautiful ride because we've been on the road for some time now, and it's always an upper and a downer and sometimes straights. So similarly, life भी ऐसी होती है, कभी उतराव होते हैं, कभी चढ़ाव होते हैं, and then you get some nice road to ride on for some time, and then of course अगर जिंदगी की रोड भी सीधी रहेगी, you will get bored after some time. You need some twisties in life. तो I started off, मैं फौजी का लड़का हूँ, तो I think somewhere down the line, because my father was always transferring after 3 years to a new place, so I think that was some inherent feeling in me कि I can't stay at one place for long. So I started a journey with solo travel across India, and I thought कि जो मेरे को एक खुशी मिल रही है इसमें, I'm pretty sure there are a lot of other people who travel and find happiness in it. तो आजकल एक बड़ा टर्म चल रहा है सेल्फ लव. So when you travel alone, you are away from home, away from the comfort zone, and you are just on your, you're on yourself, you're by yourself. And उस time पे because you're away and you're traveling, there's somewhere a journey, an inner journey happens, and वो जो inward journey है, that will actually help you to know yourself better. So मेरे लिए travel has helped me to know myself better, my strengths and my weaknesses, and once you know that, you're able to ride through the beautiful life. You're able to ride through life beautifully, in fact. So that's how travel has helped me. And when I travel solo, मेरे को अपने आप से मैं डिस्कशन करता था, कभी कभार अपने आप से बातें करता था, and that is where you understand what is sanity and what is insanity, and you try to create a more sane path in life, because see, life is full of distractions right now, and to lead a simple life, you need to see places which are away from humanity and how people live there, how are they happy and content with what they have in their lives, and somehow they're away from the rat race of life, because we in cities, हमें तो सब ऐप के थ्रू ऑर्डर चाहिए, अब तो ब्लिंकिट 10 मिनट में मिल जाएगा, so you'll just get lazier. So travel, you pick up your bum and you ride, and it's a way of active meditation. So for a lot of people who come from corporate background back in Bangalore, Mumbai, for them it is a getaway. And knowing all of this, I thought why not give this a solo traveler experience to anyone who comes to me, because a lot of these people now have that expectation कि पैसा फेक तमाशा देख. तो ठीक है, there are tour packages, but what we do is we take you beyond tour packages. We take you in a way where
you still will know that you're on yourself, you're by yourself, you know, and of course you're there to support and have a backup so that you're able to ride peacefully. But again, there's no hand holding that I do when we travel. You're on your own. We have your back, but we have your own. We have your back, but you're on your own. तो यही सोलो में यही होता है, you're on your own. And देखी जाएगी, खुद ही करना है. खुद ही करना है, देखी जाएगी. And once you do that, you're also able to test your limits. तो आपको पता चल जाता है कि अच्छा मैं यहाँ तक खींच सकता हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ. तो जैसे नए राइडर्स हैं, they can, if they start with a entry level bike, they can always cover around 300 kilometers in a day. Then slowly they can gain up to 600, 800, whatever is safe, and you don't fall asleep while riding. So ऐसे धीरे धीरे you grow as a traveler, you grow as a biker, not only on social media, but in people's heart. So to see people go back happy with a happy experience is what gives me happiness. So I think somewhere down the lane I thought ki theek hai, let's start this. Let's start with riding roots adventure, because here you will experience the roots, what it actually is on ground, not a fancier version of fancier version. कि भाई 5 स्टार में जाके रह रहे हैं. Right, 5-star वाले भी आते हैं. People who have premium bikes, they want to stay in a good property. But there are some of them who want to have a bohemian experience, have an on-ground experience. कि अच्छा चले रेगिस्तान में, आग पे रोटी बनाई, दाल बनाई, खा के सो गए, निकले अगले दिन दोबारा. But of course, कुछ टाइम के बाद लगता है कि हाँ यार घर का कंफर्ट मिस हो रहा है. तो कितना वो है कि एक टाइम चाहिए, एक पीरियड तक वो चलता है. राइट. तो तभी आप वैल्यू करते हो उसको. You're able to value that comfort. When you're outside that comfort zone, आपको वो comfort का value पता चलता है, and then you don't take things for granted. तो आज की लाइफ में यही है, nobody cares for each other, and you know, travel के टाइम पे रोड में ऐसी चीजें दिखती हैं where you're like, oh, इंसान की मौत और कुत्ते की मौत एक बराबर है, because there are so many variables on the road when you're traveling. आप A से लेके Z तक भी अपना पूरा लेके चल रहे हो कि ठीक है, I have everything, you are conscious about what you're doing. There could be somebody coming from the opposite direction. So, exactly. And he will screw all of it. So that way is being on the road is like an active meditation. Your senses are completely devoted to what you're doing on the road. And वो एक उसका beauty है. But एक flip side भी है that you get to see so many things about, especially about the pollution that is happening now, especially the plastic that is strewn everywhere. तो ये plastic और ये सब जो है ये देख के दर्द होता है, especially पहाड़ों में, because they'll have garbage dumping zones and वहाँ पे garbage dump होता है, and there is no proper waste जो कहते हैं रिमूवल या उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर टू बेसिकली वहाँ पर इतना है नहीं चीजें को लेकर. हाँ, तो अभी डंपिंग नहीं है. तो टूरिज्म और ट्रैवल का एक फ्लिप साइड जो हमें देखने को मिलता है, दैट इट इज नॉट सस्टेनेबल. इट हैज टू बी सस्टेनेबल. सो वी आल्सो डू क्लीन अप ड्राइव्स, एंड हम लोग जैसे कसौली या नियर बाय हिल स्टेशंस, वी गैदर अराउंड 5-10 बाइकर्स, वी बाय आवर ओन लिटिल गार्बेज बैग्स. जितना जो दिखता है हमें हम उठा देते हैं. तो that way is that gives me happiness. So that's my story. My story is basically that do what sails your boat and be happy. तो मेरा पूरा जर्नी का स्टोरी का जो एंड गेम है, that ended with happiness. That what gives you happiness. So if you're able to find what gives you happiness, you're able to work on it, then nothing like that. You'll have a happy life. So that is one of the main basically learnings. हाँ, motto of जिंदगी या फिर one liner of your life. हाँ, कि be happy and do what sails your boat. Nice. So one life. You only live once. So you got to travel and see the world. Yes, exactly. Because
तब पता चलता है कि हम क्या चीज़ है और कितनी बड़ी दुनिया है। एंड एक जगह भी आप मल्टीपल टाइम्स जाओ, इट इज नेवर द सेम। यस, वो सेम लोगों के पास ही कोई और स्टोरीज होती हैं नई बताने stories होती के। हैं, बिल्कुल। सो नेक्स्ट टाइम विल मे बी हैव अ डिफरेंट स्टोरी इन द या नेक्स्ट फॉर श्योर, फॉर श्योर। एपिसोड। करते हैं, बिल्कुल करेंगे। हाँ तो अच्छा, अब जैसे मैं अगर अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस मांगू, मेरे को ट्रैवल करने में मजा आता है क्योंकि मेरे को नए लोगों से मिलने में मजा आता है। राइट, ठीक है, राइट, आई एम अ फाउंड ऑफ स्टोरीज, मैं Right. हर जगह स्टोरी ढूंढता हूँ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जो है सोसाइटी से, सिविलाइजेशन से कहूँ या फिर थोड़ा सा मॉडर्न वर्ल्ड से दूर हैं, उनकी स्टोरीज और ही उतनी ही इंटरेस्टिंग है। बहुत बहुत ज्यादा। ऐसी कौन, मतलब ऐसी कोई आपके पास स्टोरी है किसी की सुनी हो आपने जो बताना चाहते हो, कुछ ऐसा हुआ था? देखिए, जो पहाड़ में जैसे हम जाते हैं ज़्यादा या दूर दराज इलाके में, तो पीपल आर वेरी सिंपल पीपल। ऑफ कोर्स टूरिज्म से काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, पीपल नाउ हैव होटल्स देयर, व्हिच इज़ गुड, व्हिच इज़ अ गुड थिंग फॉर डेवलपमेंट। बट अगेन दैट चार्म ऑफ अ सिंपलिस्टिक लाइफ, वो जब आप शहर से आते हो, वो आपको बहुत एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। एंड अभी मैं जैसे रिसेंटली अभी ज़ांस्कार गया था। ज़ांस्कार वाली में पदम बोल के एक छोटा सा, there's a small town which is touted to be the next ले सिटी, अगर वहाँ एयरपोर्ट बन जाता है। Nice. तो वहाँ पे जहाँ होम स्टे में हम रुके थे, तो उनके जो ओनर ही हैज़ मेड न्यू रूम्स, तो उसमें उनको गीज़र लगवाने थे। अब उनके पास वहाँ पे गीज़र की फैसिलिटी, मनाली से लेके आना, पूरा खर्चा, इट टर्न्स आउट टू बी वेरी एक्सपेंसिव। एंड जस्ट फॉर दैट, जैसे उन्होंने मेरे को बताया, मैंने 2 मिनट में बोला ठीक है, मैं आपके लिए 4 गीज़र ले आता हूँ। सो आई गॉट द गीज़र्स फॉर हिम एंड ही वाज सो हैप्पी। मैं क्या बताऊँ, मतलब फॉर देम डूइंग अ स्मॉल जेस्चर लाइक दिस, इट मीन्स अ लॉट। एंड दे वेरी हॉस्पिटेबल पीपल। तो ऐसी स्टोरीज वहाँ पे होती है जहाँ पे लोग, यहाँ पे हम लोग वी जस्ट स्पेंड जस्ट लाइक दैट विदाउट थिंकिंग। On one click we can spend मतलब ऑन millions वन of क्लिक, dollars, और पता नहीं कुछ एब्सोल्युटली नहीं। एब्सोल्युटली, वन क्लिक पे। तो उनके लिए वो अभी है नहीं वैसी जिंदगी, दे हैव टू वर्क फॉर इट। तो ऐसी स्टोरीज होती है ऑफ पीपल हु आर वेरी हार्ड वर्किंग, हु आर वेरी हार्डी पीपल। तो डिस्पाइट ऑल दीज माइनस टेम्परेचर्स, वो लोग वहाँ रहते हैं। एंड अनोखे अनोखे उनके पास एक्सपीरियंसेस होते हैं, बिकॉज हाई ऑल्टीट्यूड पे यू आर नॉट डिस्ट्रैक्टेड, यू आर ऑलवेज लुकिंग इन आवर फोन्स, यू आर नॉट लुकिंग अराउंड। It's more of a survival mode. राइट, राइट। उनके लिए एवरी दिस थिंग, एवरी डे इज लाइक अ ब्लेसिंग। तो वो उसके लिए दे वेरी ग्रेटफुल। वन ऑफ द लर्निंग्स यहाँ पे वी फॉरगेट अबाउट, आज ही जी लेते हैं, आज ही सब कर लेते हैं। तो द लाइफ इज स्लो, एंड वही स्लो पेस को एक्सपीरियंस करने के लिए, वो ठहराव को महसूस करने के लिए लोग बड़े बड़े शहरों से आते हैं कि हम छोटे छोटे पहाड़ों में जाके, सॉरी, छोटे छोटे टाउन्स इन द माउंटेन्स, दे टेक यू बैक इन टाइम। तो इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू गो टू सच प्लेसेस। ऐसे जैसे आपने बताया ना टाइम का, आई ऑलवेज से टाइम इज अ सब्जेक्टिव थिंग, ठीक है। राइट। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मतलब हम गए थे यहाँ पर कुल्लू में था एक होम स्टे था मेरे फ्रेंड के, है बंजार जैसे बंजार में। तो वहाँ हम गए थे 2 दिन का प्लान करके, ठीक है। हम आए थे 5 दिन बाद, पर वो 5 दिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं हो सकता महीना लगा कर आया हूँ। राइट। और वो लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था जब मैं आया ना, तो ऐसा लग रहा था यार ये कितना बदला हुआ चीज है। एंड वहाँ पे टाइम की बहुत वैल्यू है लोगों को। वो उठते हैं सुबह, काम करते हैं, कम बैक, हैव अर्ली डिनर, गो टू स्लीप, सिंपल लाइफ। तो वहाँ पे है, टाइम का स्लो हो जाता है, यू आर एट योर ओन पेस। एंड वहाँ पे तो इतनी शांति होती है कि शांति की आवाज आती है जिसकी हमें आदत ही नहीं है यहाँ पे। तो यू कैन इवन लिसन टू शांति। तो दैट्स द ब्यूटी ऑफ गोइंग फ्रॉम द सिटीज टू सच रिमोट लोकेशंस। प्लस यहाँ पे पहुँचना ही एक अपने में एडवेंचर होता है। एंड दैट जर्नी इज The main story, मेन एक्सपीरियंस ऑफ रीचिंग देयर। साल बहुत क्लाइमेट चेंज हुआ है, उस कारण लद्दाख में गर्मियों में बर्फ पड़ रही थी। इट वाज टोटल mayhem,
बिकॉज इवन लोकल्स ने ऐसा मौसम नहीं देखा था बहुत सालों में। तो ऐसा होता है, हम लोग राइड पे निकलते हैं, हम प्लान करते हैं कि सो वी डोंट डू लाइक फिक्स्ड, वी डू कि ओके दीज आर आवर वे पॉइंट्स एंड हम निकलेंगे इन पे, पहुंचे नहीं पहुंचे क्या पहुंचे, आई मेक ऑल द रिजर्वेशंस, आई मेक ऑल द अरेंजमेंट्स अकॉर्डिंगली, बिकॉज ग्रुप में क्या है, you have to carry the group together. Somebody goes fast, somebody goes slow. You need to synergize and create that sync, so that even if the group doesn't move together, you know, हमें पता है कि कौन safe है, कौन कहाँ पे पहुँचा है, क्या है। तो इस point of view से we always keep safety measures, because in areas में communication line नहीं होती है. You're not able to call each other, so you'll have to all go together. But I always tell them, यार देखो, what I feel as riders, हम लोग कहीं पिछले जन्म में घुड़सवार थे, ठीक है, और इस जन्म में हम निकले अपने इस एरा के, इस जमाने के घोड़ों पे। तो तुम लोग वाइल्ड हॉर्स पे अगर निकल रहे हो, ठीक है, nobody can tame a wild horse. बिल्कुल। तो for me, you're all wild horses. I'm not here to tame you. कि नहीं ऐसे चलना है, वैसे करना है, ऐसे करना है। There are some basics that you have to follow. Apart from that, ride as you please. So you're at your own. So ride at your own pace. There are certain guidelines that you must follow, जो हम brief करते हैं. Apart from that, there is minimal interference in your on-road this thing, because you will eventually learn if you don't listen. So ये सब करके हम निकलते हैं। एंड इस बार क्या हुआ हमारे साथ, जब हमने पॉइंट ए से एंटर करना था, ए बी सी डी ई एफ, हमें एफ से उल्टा घूम के आना पड़ा, बिकॉज रास्ते बंद हो गए, रात को हम टाइम पे पहुंच नहीं पाए, माइनस डिग्री। हमारे एक राइडर थे, ही मेट विद एन एक्सीडेंट इन सुंदरनगर, तो उनका यहाँ से उंगली फट गया था, so he had 6 stitches. Shout out to कुबेर गुप्ता, I salute you. अब मैं आपको बता रहा हूँ, वो बॉम्बे से आया है, उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, वो इतना कॉन्शियस राइडर है। नाउ आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, इवन इफ यू कीप योर A to Z प्रॉपर, कहीं से देयर विल बी समबडी हु विल कम एंड फक इट अप। सो दैट गाय जस्ट ओपनड हिज डोर, ये भी स्लो स्पीड में था, ट्रैफिक में 20 की स्पीड पे था। तो इसने देखा दरवाजा खुला है, ही जस्ट वेंट दिस साइड, बट इन ऑर्डर कि उसका दरवाजा ना लगे, उससे बाइक गिर गई। अब जब बाइक 20 की स्टैंडस्टिल स्पीड पे भी गिरी, नाउ सी द वेरिएबल्स, बचने को होने को कुछ नहीं होना था, बट हिज फिंगर केम अंडर द हैंडल, ओह शिट, एंड देन वहां से स्टिच उंगली फट गया। नाउ दैट गाय, आई एम गिविंग हिज एग्जांपल बिकॉज ट्रैवल में यू मीट सच पीपल फ्रॉम हुम यू टेक द गुड। So that guy is sitting calmly, peacefully. मैं आगे लीड कर रहा था, पीछे बैकअप से मेरे को रेडियो आया that Marshal, this guy has fallen down, please come back. तो मेरे साथ एक दो और राइडर थे, हम वापस मुड़ के, we were hardly 800 meters away from the spot where he fell down. हम लोग 2 मिनट में पहुंच गए, एंड वहां पे लड़ाई हो रही है अब लोकल के साथ। वो कह रहा नहीं, मैं अब वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा हुआ था गाड़ी में, और उसका दरवाजा भी थोड़ा सा लगा था हैंडल में, तो ही इज लाइक ये तो गलत है। नाउ वो अब क्या होता है वहां पे, यू हैव टू मैनेज दिस सिचुएशन। नाउ एज अ ऑपरेटर, आई हैव माय फर्स्ट एड किट, सो वी डू फर्स्ट एड फटाफट। उसका उंगली यहाँ से ऐसा हो रहा है, वो लोकल बंदा चीख रहा है कि मेरे को पैसे चाहिए, ये करना है, वो करना है, उतने में हम उसको फर्स्ट एड लगा रहे हैं, मैंने किट खोला है, सारा कुछ कर रहे हैं। Then there's another local who comes, he's like मैं आपको आगे क्लिनिक पे ले चलता हूँ फटाफट। तो उतने में ये अपना जो बंदा है कुबेर, he's sitting peacefully, he's like जो हुआ what can be done। Now हम लोग चले, उसका स्टिचेस करवाया। हिमाचल के जितने भी पब्लिक हेल्थ वाले यूनिट्स हैं, they are amazing, shout out to them, seamless, very neat and clean। इनफैक्ट पूरे रास्ते हमने लद्दाख में एवरी 3 days में उसकी ड्रेसिंग चेंज करी है एट पब्लिक हेल्थ सेंटर्स। तो हम लोग वहां से चले, उसका स्टिच करवाया, हम लोग केलोंग पहुंचे। अब केलोंग जाके पता चलता है जिस रास्ते पे हमने जाना था, वो रास्ता 2 दिन के लिए बंद है, सर्कुलर आ गया है, वहां पे बहुत हेवी स्नोफॉल हुई है, दे आर क्लियरिंग द रोड्स। नाउ वी थॉट ओके लेट्स वेट इट आउट।
हम तब तक आसपास के एक्सप्लोर करते हैं। उतने में कुबेर जी जो है उनके भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं कि यार अब रुक गए हैं, उंगली भी टूट गई है, क्या करें, शुड आई गो बैक? So that is the time where people who are, you know, like I said that we have your back, but we won't do any hand holding. अब वो गिर गए, वहां पे तो ऐसा hand holding हम नहीं कर सकते थे, he's fallen down. But now we had his back, we motivated him that no bro, you will do it with us. And trust me, with that belief, he completed the whole Ladakh circuit. Damn. Including Umlingla, which is at 9,024 feet, which is the highest motorable road. वहाँ पे पहुँच के he is like, जनमीत भाई मेरे यहाँ पे थ्रॉबिंग शुरू हो रही है, अब हम बहुत ऑल्टीट्यूड पे, मैं धीरे धीरे नीचे निकल रहा हूँ. तो we all saluted him. We were like, yes, please proceed, we are following you. So you know, no matter what, if you think, if you try to be in Kuber's shoes, you will understand that कहीं ना कहीं हमें एक फाइटिंग स्पिरिट होता है, कहीं ना कहीं आपका एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट जागता है व्हेन यू आर आउट इन द ओपन, व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द होम. घरों में यू आर लाइक अ पिजन, यू आर टेम्ड. आउटसाइड होम इट्स लाइक खुला मैदान, कुछ भी करो, कुछ भी करो. या ऑफ कोर्स एडवेंचर इज एवरीवेयर. तो फॉर हिम इट बिकेम अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर कि यार मैं 6 स्टिच के साथ लद्दाख किया. हाउ मेनी पीपल डू दैट? आई मीन आई प्रे दैट किसी को ऐसा ना हो. आई एम डूइंग दैट, बट स्टिल यू नो अगेंस्ट द ऑड्स. ये वो वही चीज है, वो स्टोरी वही है, पर इंटरेस्टिंग फैक्टर है. हाँ, तो अब ग्रुप में कोई भी मेरे को बोल रहा है ना, भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं वो देख 6 टांगे के साथ कर रहा है, वो उसने अपने बेचारे ने अपना दस्ताना का उंगली यहाँ से काट रखी है और इतनी मोटी पट्टी निकल रही है, और वो बाइक ऐसे चला रहा है. वो 10 दिन उसका उंगली ऐसा रहा है भाई, खाना भी उसने ऐसे खाया है. ठीक है, तो एनीबडी सेइंग एनीथिंग, आई एम लाइक लुक एट हिम, ही इज नॉट वाइनिंग. ऑफ कोर्स नोबडी वाइंड इन आवर ग्रुप, बट मैं आगे कोई ऐसा होता है तो मैं स्टोरी सुनाता हूँ. इट्स दैट वन स्टोरी फॉर मी. इट्स लाइक वो पॉइंट पे है. हाँ, दैट गाय डिड इट. आई मीन ऑफ कोर्स लोग और बहुत बड़े काम करते हैं. ऑफ कोर्स शाउट आउट टू इंडियन आर्मी, जो ऐसे एरियाज में दे आर सर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग अस, बिकॉज हम लोग तो एज टूरिस्ट जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जा रहे हैं. तो वो हमारे लिए चलो इट्स एन एडवेंचर, फॉर देम इट्स अ लाइफस्टाइल. तो दीज गाइज आर पोस्टेड एट माइनस टेम्परेचर्स, एंड क्या वो लोग फेस करते हैं वो तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते. बट हमारे लिए ये जो एडवेंचर है, दिस इटसेल्फ गिव्स अस इनफ पावर to come out of our city lives and experience this. Basically एक extreme पे जाके हम touch करके जब वापस आते हैं ना, right, we feel more powerful. Right, you feel more empowered. You feel that yes, there is a bigger force. You respect nature more. क्योंकि आप नेचर के साथ प्यार करने लग जाते हो, आप नेचर को और करीब से देख पाते हो, एंड यू आर एबल टू अप्रिशिएट नेचर कि यार नेचर इतनी ब्यूटीफुल है एंड हम इसमें गन मचा रहे हैं. So we do very small efforts to not destroy nature by properly disposing of plastic, by properly disposing of, you know, अब आप जाओगे beer bottles पड़ी होंगी, लेस के पैकेट, plastic chips के पैकेट, everything is everywhere. तो that is my only pain point about traveling, जब मेरे को ये सब दिखता है. So we are doing little bit from our side, but through this platform also I would like to tell people that please, जो भी आप गार्बेज, जो भी कूड़ा करते हैं, that you should properly dispose it off, and you should properly you know take it home. Otherwise, अगर आपको लगता है पहाड़ों में मत फेंको यार, एक पोटली बना के गाड़ी में, बाइक में, it doesn't take much space. Take home and throw it here, because यहाँ पे at least there are garbage disposal, you know, they burn it off, or units है, तो that way is you're not dirting the mountains. तो घूम फिर आके travel every time is different. It is never the same, and वही हम देखने जाते हैं. वही हर साल there are same people who've been traveling with me for the last 4-5 years. They've become friends now, and it keeps adding on. So that's the beauty of travel. That's the beauty of you know, having adventure once in a while in your life. Having that one experience. Yeah, on a motorcycle, or on a 4x4, or on a car. So mode does not matter. The very fact that you're going matters.
अब आप बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, जैसे जैसे भी जाओ, बस जाओ। अरे आजकल तो वैसे बहुत क्रेज चला हुआ है, पीपल आर मतलब ट्रैवलिंग बाय बाइसाइकल्स, इवन ऑन देयर फीट, मतलब वो पूरा पैदल जा रहे हैं। राइट। ठीक है, एक बंदा तो मेरे को लगा तो शायद चेतक पे निकला हुआ है लद्दाख के लिए। हाँ, people are crazy. People are, you see that, okay, there are shared interests. There is a collective consciousness that wants to do it. So you appreciate that. And आपको अच्छा लगता है जब आप और देखते हैं लोग ऐसा कर रहे हैं. You always give them a thumbs up, that more power to you. So that is the beauty, how you connect with strangers, because वो अपने अपने तौर तरीके से निकले हुए हैं. And you meet at a common destination. चाहे वो चेतक से निकला है, बाइक से निकला है, किसी भी से निकला है, वो रास्ते में somewhere or the other the lines converge. And that's the beauty. I mean, you feel connected. You feel, okay, there is no difference in whatever. The mod is. Yeah, people differences create करते हैं, but there are no differences between us. Personalities of course अलग होती हैं, but इंसान तो वही होता है. तो मेनली पर्सनैलिटीज अलग है, पर एक्सपीरियंस करने का पर्सपेक्टिव अलग भी अलग है. राइट. तो इसीलिए स्टोरी भी अलग है. बिल्कुल. अभी अच्छा एक और चीज़ है जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा, मतलब मैं जब पहाड़ों में वगैरह जाता हूँ, मैं हमेशा अपनी डायरी खोल के बैठ जाता हूँ, बिकॉज दिस केओस वहाँ जाके हील होता है, पता नहीं क्यों. राइट. या फिर वो निकलता है, चाहे आर्ट के थ्रू निकले, चाहे किसी थ्रू. वो माहौल ही, आई डोंट नो क्या है वहाँ पर, वाइब ऐसा है कि किस चीज़ का कह सकते हैं, वहाँ की हवा ही ऐसी कि नहीं पता है. उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते. ये तो है, माउंटेन्स में एक अलग एनर्जी है. Mountains are ancient creatures. They are ancient, they are the ancients. तो उनमें इतनी एनर्जी है that when you go to the mountains, you do experience a sort of calm, sort of, आपका अंदर का एक creativity थोड़ा बाहर आता है, because you're not spending time in the hustle, distracted, in the hustle of the city. So that way, it's a very good place to, have a peaceful experience, have that harmony and all of that chaos that is going on. You'll be able to find harmony. So that one pause है कि बस कुछ टाइम के लिए रोक लो बस. right, the flow. तो वो जो flow of life है वो तो रुकेगा नहीं. उसको नहीं हम, but उसको हम थोड़ा सा we can experience it, we can relish it. यहाँ पे है पिज्जा 30 minutes नहीं तो फ्री. ठीक है, मिल जाएगा भाई, आधे घंटे में खा लो और सो जाओ. मस्त. वहाँ पे है that okay, you wait for the wood, लकड़ी को आग लगेगा, गरम होगा, पकाओगे, क्लीन करोगे, सो जाओगे. तो of course there is it's a different process, and it's a beautiful process. So to experience that process in the mountains, especially on a motorcycle, it is something different. मैंने बोला कोई भी तरीके से आओ अच्छा है, but on a motorcycle you are more vulnerable. आप किसी के साथ बैठे हो, you're on the driver's seat. आप किसी गाड़ी में बैठे हो, बस में, किसी में भी, you're not driving that. On a motorcycle, everything is under your control, and when that happens, you are able to channelize your energies. So that channelization happens, and after a certain amount of time, you're able to feel that, and you're able to channelize that energy in your regular life also, when you're through your relationships. It's like focusing on one point. Right. अगर यहाँ से यहाँ भी हुआ, right, then it can cost your life. So that one point is everywhere. तो अगर मैं एक ही point में देख लिया फिर तो मैं गया. So that one point is everywhere. So that is what infinity, you just experience reflexes, ये सब बहुत सारी चीजें आती हैं. Right. कुछ पता नहीं, सही में बहुत मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होते हैं. कभी कभार आप सोच नहीं पाते हो कि क्या देख लिया है. तो एक बार ऐसे उत्तराखंड में हम लोग रात के टाइम वी आर राइडिंग एंड इट हैज स्टार्टेड टू रेन. एंड अब देखो ये चीज ऐसी कोई, मैं आई कांट से इट इज, सीइंग इज बिलीविंग. तो आई डोंट नो इफ यू वुड बिलीव इट, बट आई हैव सीन इट, सो आई बिलीव इट. नाउ वी आर राइडिंग इन द बारिश. अब बारिश बहुत तेज हो रही है, जंगल का इलाका है, आसपास कोई गांव नहीं है, देयर इज नो ह्यूमैनिटी. अब हम जा रहे हैं, बारिश हो रही है, एंड सडनली जब आप अपना मतलब जब
पहाड़ों में जा रहे हैं, बारिश हो रही है, तो छोटे छोटे नाले बनने शुरू हो जाते हैं पहाड़ के साइड में, वो बहने लग जाते हैं। तो हम लोग जब वी आर राइडिंग, सडनली नजर पड़ती है एंड बहते पानी के अंदर एक आग की ज्योत है। एंड हम लोग देख के वी डोंट स्टॉप, वी कीप राइडिंग। आगे रुक के हम उसके बारे में बात करते हैं कि वो क्या था। एंड ऐसा भी एक थ्योरी है हमारे दोस्त ने निकाला, दैट कुड बी अ टेम्पल, जो अंधेरे में हमें नहीं दिखा, बट टेम्पल के लिए भी देयर हैज टू बी सम पॉपुलेशन अराउंड। So there was no population. This was in Almora district of Uttarakhand, and it's a very mystical place. A lot of such things happen where you don't have an explanation for it. So travel, if it leaves you with answers, it leaves you with a lot of questions also for your next trip. तो वो आज तक हमें समझ नहीं आया कि बहते पानी के अंदर एक फ्लेम कैसे हो सकती है और वो क्या हो सकती है। So that is one experience. And then like you asked, Kasar Devi है एक उत्तराखंड में जगह। It is a cave temple. And वहाँ पे भी it lies on the Van Allen belt. Sorry, मेरा nose थोड़ा block हो रहा है, but it's on a magnetic field. तो कहते हैं वहाँ पे if you meditate, you can actually zone out. You are able to connect into a frequency much easier. A lot of great people like Timothy Leary, Vivekanand ji, Swami Vivekanand, a lot of such people had come and they meditated there. So I read all of this on a board वहाँ पे जो लिखा हुआ था. So my second time there, I climbed up to a Shiv temple जो ऊपर था, and I just मतलब मेरी सारी इच्छा की एकदम से just it was death of all इच्छा. It was only that I was breathing. And suddenly there were monkeys, and वो जो पंडित जी थे वो monkeys को भगाने के लिए ऐसे कर रहे थे, and उसी से मेरी नींद ऐसे खुली. नींद था क्या था, I was totally शून्य. अब शून्य हो जाते हैं एकदम से. So it was, I then researched about it, I read about it a little online कि क्या हो सकता है, what it is, and most probably it was an out of body experience or an astral projection where you are not human, you are at the energy level, you become an energy. So to put it in words, it is very difficult for me कि it is an experience that you have to experience it yourself. अच्छा, कोई ऐसी recent experience, like I heard you have that crystal. Yeah, so yeah, it is right here. I don't know if we are able to see it in the camera. So इधर इस तरफ दिखा है. This side is the, if you're able to see this, देख रहे हैं? हाँ दिख रहा है. So this is actually one of the most common minerals found on earth. It's called quartz. अब ये healing crystal के लिए आजकल बहुत यूज हो रहा है, and it's found in the mountains. Basically, it is mined, and जहाँ पे basically सोना भी होता है वहाँ पे भी ये निकलता है. And they're actually living organisms. They the atoms have formed in such a sacred geometry कि ये ऐसा grow करता है. Basically, it keeps growing. So it's a beautiful piece of earth forged under tremendous pressure millions of years ago. And ऐसी चीजें मिल जाती हैं when you're traveling in the mountains, which become a memory for you. So when you look at certain such things, which are near you, you have a memory of that travel. It's like a memento. It's like a memento that, so whenever you're traveling, you'll find such weird things that And you can carry great along with you. icebreaker भी. Of course. Where I found this. Yeah, so you can always, it's like, it's a good conversation starter also. You can just like bring it out and like, bro, check this out. What is this? You'll be like, oh, Before diamond. entering. Diamond बोल देंगे भाई, diamond है ये. तो हाँ, ये अफ्रीका से लाया था. अफ्रीका से लाया था, blood diamond. Like अगर मैं ये इसकी बात करूँ तो it told me it's a living organism. It was a living organism. Right. ठीक है. And ये जो बीच में I don't know दिख सकता है कि नहीं. अलग से चमक रहा है अंदर से. अंदर कुछ अलग ही है. एक एकदम प्रिज्म टाइप है. Yes. It's different. So एक और बात करते हैं अभी. Like
हमने ऐसे बात किया आपका गुड एक्सपीरियंस के बारे में. Right. Let's talk about your worst experience as a Right. traveler. Right. So like I said, my worst experiences are when I see plastic, when I see garbage, when I see kuda, when I'm traveling. That just ruins the whole experience of traveling because चलो आपको accept भी करना पड़ेगा, that's part of it, but it pains. आप देखते हो यार इतनी सुंदर धरती है और आप उसको इतना कबाड़ कर रहे हो, इतना खराब कर रहे हो, तो वो एक बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस होता है. जब आप पहाड़ों में मस्त ऐसे बाइक लेके नज़ारे देख रहे हो, ऐसे टर्न लेते हो और देखते हो कूड़ा ही कूड़ा पड़ा है. उस टाइम मेरा ऐसे दर्द होता है अंदर यहाँ पे. तो वो एक मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है. बाकी ऑफ कोर्स challenges आते हैं. When I can't say it's a worst experience, but there are challenges that we face during our trips. Now they can be weather challenges or challenges of a challenge from people, because how everyone reacts to a certain situation is always different. So होते हैं challenges आते हैं. You have to buck up people. You have to tell them that no, you have to do it. You have to push it because and on spot decision making भी बहुत. हाँ, on the spot पता है कि क्या करना है. It's a split second decision. तो एक बार ऐसा हुआ था, हम लोग वारीला पास बोल के एक है लद्दाख में. वारीला इज थोड़ा सा कम करते हैं लोग इसको, बट इट्स अ डेंजरस पास. एंड हम लोग रात को, अब यहाँ पे क्या हुआ था, हम लोगों ने थोड़ा सा because of time constraint we thought okay let's push. अब कोई जगह नहीं थी रुकने की, तो we thought okay we took a collective decision. चले या रुके. so वारेला जाना हमने क्रॉस करना था रात को. हम लोग सुबह तुर्तुक से निकले थे, which is त्याक्षी गांव बोल के. हम वहां से निकले थे और हमें ले पहुंचना था, but of course we were not able to reach ले, we reached कारू. तो वो हमने डिसाइड किया we'll reach कारू after वारेला पार करके. तो अब रात का टाइम हो गया, जो पानी बह रहा है वो जम चुका है, बर्फ बन चुकी है, अंधेरा हो चुका है. एंड वंस द सन इज डाउन, टेम्परेचर्स गो डाउन लाइक दिस. बाइक में ही टेम्परेचर माइनस कुछ दिखा रहा था, रनिंग इंजन में इट वाज ऑलमोस्ट लाइक आई थिंक 0 ही था. आई डोंट रिमेम्बर माइनस था कि कुछ था, बट इट वाज कंप्लीटली गॉन. अब हमारे ग्रुप में एक जेंटलमैन थे who was recently blessed with a baby daughter. So he had this thought in his mind he was always thinking about her. तो उसको एक थोड़ा वो उसका vulnerability factor हो गया था कि यार what if I don't make it, what about my daughter? So that thing kept playing in his head over and over again. And वहाँ पे वारीला पे he stopped and he was crying almost that I am not able to do it. My hands are frozen, my feet are frozen. मेरे से नहीं हो पाएगा. और बहुत ऑफ रोड रास्ते, पास को चढ़ना है, उसके बाद तो उतरना भी. अभी तो चढ़ाई पे हो रहा है, अभी तो उतरना है. और उतरने टाइम तो I will also admit that we were almost hallucinating because लो ऑक्सीजन था एंड रात का टाइम हो गया था, बहुत ठंड थी, पिच डार्क, देयर इज नो गाड़ी, नो अदर व्हीकल, एंड सिर्फ हमें बाइक की लाइट्स दिख रही है एंड वो कहाँ इधर उधर जा रही है, वैली में जा रही है, रोड पे जा रही है. हम लोग वी आर ऑल्सो गेटिंग अ लिटिल बिट डिसओरिएंटेड, नॉट hallucinating but little bit of disorientation. So at that point of time I had to take a call that if I stop here and engage in a conversation right now, it is not the right place. आप हाई ऑल्टीट्यूड पे हो, आप माउंटेन पास पे हो, रात का टाइम है, आपका साथी जो है वो चढ़ नहीं पा रहा है, आप क्या करोगे? I don't know, मैंने एक बहुत अनकन्वेंशनल तरीका बोलो या क्या बोलो, when he stopped and he's trying to stop me, I gave him a thumbs up. I said, I am not stopping, follow me right now. Gear down. मैं रुका भी नहीं बिकॉज चढ़ाई थी, मैं फर्स्ट गियर में था. मैंने उसको ये बोला चीख के,
And when he saw me crossing, he's like, "Fuck, ये भी निकल गया, फिर तो मैं बिल्कुल यहाँ पे I am fucked." That's my last hope there. So at some point of time, you have to be somebody's hope in life. You have to push them. You have to push them in a way that उनको खुद गाड़ी स्टार्ट करनी है. एक certain उसके बाद आके you can't really hold somebody's hand and do that. He's capable of doing it. He's a bit scared. वो जो fear है, वो आप उसको या तो amplify कर दो इतना that उसको मोटिवेशन हो जाए कि फियर मोटिवेशन है कि मैंने ये नहीं किया तो मैं यहाँ फंस जाऊंगा. ठीक है, वो एक फियर है कि मेरे को ये करना पड़ेगा, नहीं किया मैं फंस जाऊंगा. और इट्स अ रिवॉर्ड मोटिवेशन दैट यस मैंने ये कर दिया तो आई एम मोटिवेटेड टू डू दिस. उस टाइम पे उसका फियर मोटिवेशन उसको काम आया, नॉट अ रिवॉर्ड, बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज नॉट थिंकिंग कि मैंने वारीला रात को पार कर दिया. वो ऑफ कोर्स एक दिन बाद उसके दिमाग में वो सब आया कि ओ शिट मैंने वारीला रात में कर लिया. उस टाइम वो अपनी डॉटर के बारे में सोच रहा था. तो हर किसी का अलग अलग फ्रेम ऑफ माइंड होता है. सो आई डिडंट स्टॉप. आई टोल्ड हिम दिस एंड आई टोल्ड हिम टू कीप मूविंग विद मी, अदरवाइज ही इज ऑल अलोन. उसने वो देखा. मैं भी स्लो डाउन ऑफ कोर्स हुआ कि लेट हिम स्टार्ट, एंड बट आई केप्ट मूविंग. आई डिड नॉट स्टॉप एंड देन ही फॉलोड. सो समटाइम्स टू लीड यू नीड टू बी अ बिट हार्श. जैसे इस बार it's harsh condition. You It's have a to harsh make condition. those decisions. बिल्कुल. And that's the Whole agenda of travel. whole agenda, whole goal. The whole goal. Everyone goes back happy with new experiences, New stories, and more confident in their life, and New friends. New friends. Of course, so many people, especially people from Bangalore. All of you guys. I mean, thank you so much for being part of this journey. And I hope there are many more people who join this journey of adventure through the mountains of India and the Himalayas, of course, the Himalayas. So अभी sunset होने वाला है, I think. हाँ. तो वो थोड़ा enjoy करते हैं sunset को. Shout out to Aditya Jodani, Alan, Prakyat, Dikshit, Poonam, Shweta, Apurv, Inderjeet Bhai, all of you guys, Dipali ma'am. So all of you guys, there are so many other people. Simran, I'll just go on. So all of you guys have, Deepak, names keep coming in, Ankit,